ओके, तो ये पोटैटो ट्यूबर डिजीज की फोटो थी, ये रिंग वर्म्स की है. This is athlete's foot, again a ringworm condition. इसके बीच में between the fingers the infection spreads, there's a lot of itching, there's a lot of burning, and the nails become very taper like, okay, very thin, so you can easily break them with your hand. And when the fungal infection spreads to your tongue, the tongue might become black colored, right? And it becomes very very difficult for you to eat any spicy food, particularly even अगर आप salt भी खाओगे तो भी लगेगा. चलो ये कुछ questions है, we will come back to them after we have done protozoa. Let's just quickly discuss the next topics, all right? And we are not going to do this. Discuss it later on because अभी ना थोड़ा सा हम लोग पीछे चल रहे हैं. So I want कि हम पहले ये सब खत्म कर लें, right? Then we will discuss these questions, all right? चलो. So let's talk about protozoa. देखो मोनेरा के बाद किंगडम प्रोटोजोआ ही आता है, यानी कि बैक्टीरिया के बाद में फिर प्रोटोजोन्स आ गए थे. What will be the characteristics of protozoans? The cell type is eukaryotic, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं. न्यूक्लियस आपको दिखेगा. देन दे आर यूनिसेल्युलर. व्हाट एल्स? few members are photosynthetic. मैम वो मल्टीसेलुलर नहीं हो सकते? बहुत रेयर ही. Ma'am, we are starting protozoa now, right? Yes, yes. Majority of protozoans are unicellular, right? The meaning of Monera is that they are unicellular. हाँ, मोनेरा में सारे जो मेंबर्स हैं बैक्टीरिया ही है ना, दे आर ऑल यूनिसेल्युलर. ओके, मैम आपने एरो क्यों डाला है मैम मोनेरा के बाद? एरो का मतलब है कि मोनेरा के बाद प्रोटोजोआ आया था. ठीक है, पहले ये आया था फिर ये आया था, राइट? कंफ्यूज नहीं हो गया आप लोग. देन the kingdom protozoa exhibits a wide range of modes of nutrition. Okay, मैम this year 12th exam got cancelled. 12th exams got cancelled. Yes, ma'am. Yes board. मैम. मैम मेरे साथ अच्छी बात नहीं है. कैंसिल हो गए? यस मैम कैंसिल Yes, हो गए मैम. ma'am. मैंने देखा है न्यूज में भी आ रहा है. तो फिर बच्चे पास कैसे होंगे? मैम उन्होंने बोला है कि वो ना जो 12th और 11th ऐसी कुछ है, 12th का मेन है, जो उन्होंने असेसमेंट्स दिए हैं उसके ना एवरेज निकालेंगे, वो उससे होगा. लेकिन मैम Ma'am, the एवरेज pre-board. बच्चे प्रिपेयर ही नहीं करते अच्छे से नॉर्मल एग्जाम्स के लिए स्कूल के. हाँ, because even my sister had her 12th exam, so she is also telling me कि कैंसिल हो गए. चलो, anyways, अच्छी बात है कैंसिल हो गए, बिकॉज अभी तो कंडीशन वैसे भी काफी ग्रिम है. चलो लेट्स कम बैक, हम तो अभी 8th क्लास में है ना. ओके, सो सी व्हाई एम आई सेइंग कि प्रोटोजोआ बहुत वाइड रेंज ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन exhibit करता है. That means you will see saprophytic mode of nutrition also, you will see photosynthetic mode of nutrition also, you will see heterotrophic mode of nutrition, and also some members might show parasitic mode also. So देखो कितने सारे modes हैं जो ये exhibit कर रहे हैं, right? तो ये सब points लिख लो जल्दी से. हम कौन से सारे जो मैंने लिखे हैं ना वो सब लिख लो आप लोग. हम मोड न्यूट्रिशन में एक बार रिपीट कर सकते हैं? कौन सा? हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिपीट कर सकते हैं? हाँ, देखो इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, यानी कि वो प्रेडेट करेंगे और फिर वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करेंगे, राइट? देन देयर आर सम मेंबर्स व्हिच
you know exhibits saprotrophic mode of nutrition, यानी कि they decompose the material, उससे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं. Then there are some which are phototrophic also, यानी कि वो खुद से you know photosynthesize करके अपना फूड बना के मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका वो रहता है. And then there are very very few members जो parasitic भी हो सकते हैं if the condition requires, right? यानी कि अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो वो parasitic mode of nutrition भी शो करेंगे. Otherwise exclusively parasitic as such कोई भी नहीं है इनमें. Okay, Shraddha is saying, ma'am, what we write is heading. Shraddha, the heading will be protozoa. ठीक है, the heading that you will put over here is protozoa. Okay, ma'am. Ma'am, what are the examples of phototrophic? अभी हम आते हैं ना आगे धीरे धीरे जैसे डिस्कस करेंगे, then I'll tell you about those ones. Okay. Yes, ma'am. हमें बहुत बड़ा चैप्टर है. हाँ बड़ा तो है, that's right. But at the same time, you know, it's very interesting also. हम हर क्लास में चैप्टर 2 सबसे लंबा होता है. क्या कह रहे हो शाश्वत? मैम मैं अनिकेत कह रहा हूँ, हर क्लास में चैप्टर 2 सबसे लंबा होता है. 7th में भी 6th में भी था. पता नहीं है, आई मीन आई एम नॉट श्योर ऐसा कुछ है या नहीं, मैंने कभी नोटिस नहीं किया. बड़ी क्लास में आके तो सारे ही चैप्टर लंबे लगते हैं. व्हेन वी वर इन कॉलेज, यू नो एक तो कॉलेज में क्या होता है कि नॉट ऑल टीचर्स आर एज एंथुसियास्टिक फॉर टीचिंग एज यू नो अदर्स. और फिर ना पता नहीं लगता था कॉलेज में, जैसे बिकॉज कॉलेज में क्या होता है ना, आपकी मर्जी हो जाती है स्कूल कॉलेज जाना है नहीं जाना, बिकॉज तब तक आप बड़े हो जाओगे ना, मम्मा पापा आपसे पूछेंगे कॉलेज जाना है नहीं जाना, कोई नहीं छुट्टी मारो घर पे बैठो, राइट? सो यू नो कई बार आप क्लासेस मिस कर देते हो, कभी बंक कर लेते हो, कभी कॉलेज छोड़ के घूमने चले गए, तो सिलेबस का चैप्टर का पता ही नहीं लगता था कौन सा यूनिट चल रहा है कौन सा नहीं. अभी अच्छा है कि पीपल आर इन स्कूल, तो एक ना स्केड्यूल रहता है आपका, एक रूटीन रहती है. स्कूल इज मच बेटर देन कॉलेज, ट्रस्ट मी. हम सब कहते हैं कि 9th से पढ़ाई मुश्किल हो जाती है. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. जो लोग ऐसा बोलते हैं ना वो इसलिए ऐसा बोलते हैं बिकॉज दे डोंट रेगुलरली स्टडी. जब आप रोज पढ़ते हो आपको पता लगेगा कि कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है. इनफैक्ट वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है. मैम 9th से इंटरेस्टिंग होती है, बट जो टॉपिक होता है वो बड़ा लेकिन मैं सच्ची में मैम, लेकिन मैम मैं सच्ची में एक बार ना बाई चांस 10th की बुक में हाथ लग गई थी लाइब्रेरी में शायद से. मैम एकदम ऐसी मैंने खोल के देखी थी बीच बीच में, ऐसी ऐसी फोटो बनी हुई थी. हम इतना डिटेल में फंजा और ये सब, हम ये तो बहुत ज्यादा. 10th की एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं है. वो आपने कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ी होगी ना एनसाइक्लोपीडिया टाइप, तो उसमें तो डिटेल में ही होता है. Ma'am, my mother used to say that 10th and 12th is much easier than 9th and 11th. बिकॉज सी क्या होता है ना, 9th और 11th का सिलेबस सेम है और 10th और 12th का सिलेबस सेम है. जो आप 9th में पढ़ोगे वो सब 11th में डिटेल में होगा, और सेम थिंग इज विद 10th आल्सो. जो 10th में पढ़ते हो वो 12th में. डोंट वरी, जब आप लोग पढ़ते हो ना आपको अपने आप पता लग जाता है. और देखो एक बार क्लास में पहुंच गए तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, और कोई चॉइस है नहीं, राइट? व्हेन आई वाज इन यू नो 7th 8th आई हैड स्टॉप्ड स्टडिंग, मेरे ग्रेड्स कम हो गए थे. So my maths particularly used to be really bad क्योंकि मैं पढ़ती नहीं थी. I actually you know I used to be scared of maths कि पता नहीं मुझे आएगी नहीं, मुझे समझ नहीं आएगी. Then when I came in 9th standard, so section change हो गए, sections ना shuffle हो गए थे 9th में, 8th तक same थे हमारे. So when the sections were shuffled, I had new students in my class, I had new people, and you know our class was actually very competitive. हमारी क्लास में ना बहुत सारे bright students थे, सबके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आते थे. And then you know one of them was my childhood friend, तो he used to ना tease me a lot कि यार तेरे तो मार्क्स ही बड़े खराब आते हैं, तू पढ़ती नहीं है क्या, तू पहले तो पढ़ती थी. So then I started studying, and once I started studying maths and science, I realized कि इतना तो डिफिकल्ट है ही नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है.
So then धीरे धीरे my marks started getting better. Then 10th में भी I scored full CGPA, फिर 11th में, 12th में. So you know it's all about practicing and trying. जब तक आप उसको उठा के देखोगे ही नहीं, बेकार में ना दिमाग में हवा बना रहेगा कि यार मुझे तो आता ही नहीं, मुझसे हो ही नहीं पाएगा. बट जब आप एक बार उसको ट्राई करते हो, यू गेट टू नो कि नहीं, कोई भी कर सकता है. देखो सबका ब्रेन सेम है. इट्स टोटली अप टू यू हाउ यू यूज इट. Okay, how are you putting in the effort and how ready are you to expand your knowledge realm? Okay. यस मैम. आपके टाइम में मैम NTSC था मैम? हाँ बिल्कुल था, मैंने दिया भी था. मैंने NTSC दिया था, लेकिन यू नो इतना सीरियसली नहीं दिया था, बिकॉज एट दैट टाइम यू नो देयर वाज नो गाइडेंस टू मी कि NTSC की क्या इंपॉर्टेंस है. लाइक यू पीपल गेट अ लॉट ऑफ गाइडेंस. व्हेन आई जॉइंड आई सॉ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग. तो यू नो आई रियली गॉट टू नो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. बट जब मैंने दिया था 9th क्लास में, तो मुझे था कि चलो ऐसे ही एग्जाम है, ट्राई करने के लिए दे देते हैं. तो मैंने बस ऐसी हवा हवा में दे दिया था. अगर मुझे पता होता तो मैं और अच्छे से प्रिपेयर करके देती. यस मैम. मैम वो बहुत मुश्किल होता है. नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं होता. जो आप बुक में पढ़ते हो ना, वही सब होता है. थोड़ा सा आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आप उसको अच्छे से पढ़ो तो हो जाता है. NTSC में नेगेटिव मार्किंग होती है? देखो जब मैं थी तब तो थी. फॉर रॉन्ग आंसर्स देयर इज नेगेटिव मार्किंग. नाउ आई डोंट नो, हो सकता है पैटर्न चेंज हो गया हो, काफी टाइम हो गया ना. सो माइट मैम मेरे हिसाब से तो नहीं होती. मैम चलो अब देखो, जो प्रोटोजोआ है इसके अंदर ना बहुत सारी हम डाइवर्सिटी देखते हैं. ठीक है, जैसे हमने बैक्टीरिया में देखा था द मोड ऑफ मोटिलिटी और द मोड ऑफ मूवमेंट Ma'am, we इज didn't write the definition. जो हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं ना, वो हम लिख दी. डेफिनेशन ही है. अगर आपको प्रोटोजोआ की डेफिनेशन बनानी हो तो आप उसी में से बना सकते हो. दैट प्रोटोजोन्स आर यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स दैट एग्जिबिट अ लार्ज mode of nutrition or you know large or wide range of nutrition and are very small organisms that come after kingdom Monera, right? Okay, ma'am. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हम जो है इन प्रोटोजोन्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट दैट दे फॉलो. किस तरह से, किस ऑर्गन को यूज करके इनमें मूवमेंट हो रहा है, उस बेसिस पे हम इन्हें स्टडी करते हैं. ठीक है, तो ये चीज आप पहले नोट डाउन करो and then we will talk about the structures and the examples of all the protozoans. मैम सबने नोट कर लिया? चलो, so let's talk about the different types of protozoans. So the first one is amoeboid. पहले मैं सारे ये टॉपिक्स लिख रही हूँ, उसके बाद हम एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे. ऑल राइट, amoeboid protozoans. Then flagellated protozoans. Ciliated protozoans. And finally sporozoans. ठीक है,
इसके बारे में डिटेल में लिखना है। हाँ हाँ, डोंट वरी, अभी लिखते हैं, ठीक है। नाउ सी, सबसे पहले आते हैं हमारे अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। डू यू नो व्हाट इज एन अमीबा? Yes, ma'am. I'm a unicellular organism without a Which has fixed shape. pseudopodia. हाँ, very good. So see, amoeba is a unicellular organism, all right. This is normally found in aquatic, habitat. Dirty water में बहुत मिलता है ये, right? ये कैसे मूव करता है? ये ना जेली की तरह होता है. Can you see its structure? ये जेली जैसा है, right? So ये pseudopodia. हाँ बोलो Yes, अनुदीप. ma'am. False feet. हाँ, false feet. Yes. It is known as pseudopodia. सूडोपोडिया. तो ये क्या करता है ना, जैसे हम स्विमिंग करते हैं ऐसे हैंड्स मूव कर करके, इसी तरह से ये इन जेली जैसे स्ट्रक्चर्स को अपने हैंड या फीट बनाता है एंड इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स एंड दीज आर नोन एज सूडोपोडिया. सूडो मतलब फॉल्स एंड पोडिया मतलब फीट और लिम्स. ओके, तो जो प्रोटोजोन्स इस तरह की मूवमेंट फॉलो करते हैं, दे आर नोन एज अमीबॉइड प्रोटोजोन्स. ठीक है, बिकॉज here we are talking about the mode of movement or motility, right? ये चीज क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसके नीचे let's just quickly write down the points, all right? पहला पॉइंट, amoeboid protozoan में सिर्फ नहीं और भी होते हैं, अभी बताते हैं. पैरामीशियम. नहीं, पैरामीशियम इसमें नहीं आता. रुको तो सही, अभी बताती हूँ एक एक करके. राइट, ये हो गए अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के पॉइंट. जल्दी से लिखो, फिर आगे डिस्कस करते हैं. I'm noted. Good. Ma'am, noted. Okay, now the next one is flagellated protozoans. अच्छा, इसमें हम एग्जाम्पल तो लिखना भूल गए ना. 1 second. तो पहला एग्जाम्पल आपका हो गया अमीबा, राइट? The other example is Entamoeba histolytica. This is responsible for causing dysentery. Okay, this is a pathogenic protozoan, right? ये dysentery cause करता है. अभी हम आगे जब बात करेंगे तो हम थोड़ा सा और डेप्थ में बात कर लेंगे. Flagellated वाले कौन बताएगा? What is the meaning of flagellated protozoans? Very very easy. They have flagella which helps in the Ma'am, they have locomotion of flagella, which is the tail. Good. them. So Helps in flagellated. locomotion. हाँ, right. Pavni and कौन बचा आंसर करा था? Kush. Kush, yes, Pavni and Kush are right. So flagellated protozoans have a flagellum or flagella, more than one होंगे तो flagella, right? तो ये flagella की help से move करते हैं. तो इसका सबसे common आपका जो example है, that could be trypanosoma. ठीक है, trypanosoma, you must have heard, is also known to cause sleeping sickness. ठीक है, एक pathogen है trypanosoma. So these appear something like this. ठीक है, मोर देन वन फ्लैजुलम, ये बीच में इनका न्यूक्लियस. ओके, मैम सर ने बताया था हमारी बॉडी में भी हम कुछ सेल्स होते हैं जो हाँ. ऐसे. बिल्कुल, हमारी बॉडी के जो मास्ट सेल्स है ना, दे आर प्रेजेंट इन द ब्लड. मास्ट सेल्स इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं. दे हैव अमीबॉइड मूवमेंट.
अमीबा की तरह मूव करते हैं वो, ठीक है। ये फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। दीज आर पैरासिटिक, अभी बताया ना, बिकॉज दीज आर पैथोजेनिक, तो ये हमारी बॉडी में पैरासाइट की तरह रहते हैं। एंड दे हैव अ फ्लैजुला। एग्जाम्पल वाइट की तरह मूव करते हैं, वो फ्लैजुला से मूव करते हैं। फ्लैजुला से मूव करते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको? Yes. Yes, ma'am. Ma'am, noted. Ma'am, noted. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज सीलिएटेड। सीलिएटेड वाले जो होते हैं, दीज हैव सीलिया ऑन देयर सरफेस। सो जो सीलिया वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, दीज अपीयर समथिंग लाइक दिस। Ma'am, I forgot what is cilia. अभी बताती हूँ Hair. what is cilia are like very fine small hair on the outside of the body. Basically hair भी नहीं होते। अगर आप इन्हें क्लोजली देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, अगर मैं सीलिया देखूं तो सीलिया लुक्स लाइक अ ट्यूब, इट्स अ ट्यूब्यूलर और अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ऑलराइट, देन सी व्हाट हैपेंस इज, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ना ऐसे करके बाहर की तरफ एक कैविटी होती है which is known as gullet. Okay, this is known as gullet और gullet, कुछ भी बोल सकते हो। This is like an opening जहां से ये फूड engulf करते हैं या ingest करते हैं, एंड यहीं से ये अपने बॉडी के वेस्ट को एलिमिनेट भी करते हैं। There are two you can say nuclei inside them. एक बड़ा वाला होता है for the cell activity और एक छोटे वाला होता है for the reproductive activity. ठीक है, दिस इज द मैक्रोन्यूक्लियाई Ma'am, we have to make the diagram. न्यूक्लियस। यस, मेक इट, बहुत इजी सा है, डोंट वरी, बना लो, दैट्स बेटर, राइट। एंड दिस इज द माइक्रोन्यूक्लियस फॉर रिप्रोडक्शन। मुझे किसका हाँ डायग्राम? बोलो शाश। दिस इज द डायग्राम ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम, ठीक है। कुछ ने पूछा भी था ना पैरामीशियम अमीबा वगैरह क्या होते हैं, तो ये पैरामीशियम है। It is which type of protozoan? Ciliated. सीलिया बना हुआ है ना ऊपर, यहाँ लेबल करेंगे सीलिया, एंड इसके बीच में दीज आर ऑल द राइबोसोम्स एंड साइटोप्लाज्म एंड स्टफ। Okay, ma'am. इसके नीचे आप लिख देंगे या ऊपर लिख देंगे पैरामीशियम। ट्राई टू ड्रॉ इट अंडर द दिस सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, उसके नीचे ही ड्रॉ करना क्योंकि उसी का एग्जांपल है। देन अगेन हर ऑर्गेनिज्म के सेल में राइबोसोम होता है। हाँ बिल्कुल, देखो बैक्टीरिया वगैरह में हो सकते हैं कई बार राइबोसोम्स एब्सेंट हो, ठीक है, बट वैसे ऑलमोस्ट सब में ही होते हैं राइबोसोम्स बिकॉज दे हेल्प टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स। ओके, ओके, नाउ ये जो सीलिया है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दी सीलिया? मूवमेंट, कैसे मूव करते हैं? ओर्स की तरह। ओर्स देखे आपने बोट के अंदर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं हिंदी में? ओर्स को हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, शायद वो बोलते हैं, बोट चलाते हो ना, तो बोट के अंदर ओर्स होते हैं ना, जिनसे बोट को पुश करते हो आगे की तरफ, राइट? तो ये भी कुछ उसी तरह से मूव करते हैं। तो इनका मूवमेंट अगर ओर जैसा है, इसका मतलब ऑब्वियसली ये एक्वेटिक हैबिटेट में ही रहते होंगे, है ना, क्योंकि लैंड पे तो ये उस तरह से मूव नहीं कर सकते। सो दे आर आल्सो फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। मैम वो ब्लेड्स जैसे वो जो होते हैं जो हाँ यस, उन्हें ओर्स बोलते हैं ना। हाँ, उन्हें वो बोलते हैं हिंदी में चप्पू, ठीक है। एक्वेटिक हैबिटेट्स में मिलते हैं ये। Cavity called gullet,
for ingestion and excretion. मैम वायरस के पास राइबोसोम होता है? वायरसेस के पास अपने राइबोसोम्स नहीं होते, इसीलिए वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन. मैम जो पैरासिटिक जैसे मैम आपने बताया था, जैसे ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है मैम, ये भी इनके पास होता है राइबोसोम मैम, क्योंकि पैरासाइट हैं तो? नहीं नहीं, इनके पास भी राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, बिकॉज सी पैरासाइट है तो उसका मतलब है कि जो न्यूट्रिशन इनकी बॉडी को चाहिए वो इन्हें बाहर से मिल रहा है, बट अपनी खुद की बॉडी के लिए जो प्रोटीन्स वगैरह बनाने हैं वो तो इनके खुद के राइबोसोम्स ही बनाएंगे ना. Ma'am, do complete parasites have, ma'am, it is called complete parasite which doesn't have ribosomes. What is the question, Kush? There is a parasite, ma'am, I don't remember the name, ma'am. There's a term for the parasites who does not have ribosomes. अभी तो मुझे नहीं ऐसा कुछ भी याद आ रहा है, अगर मुझे बाद में याद आएगा तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है. Okay. एंड इसका एग्जाम्पल हो गया पैरामीशियम, ठीक है. मैम एंड वो जो हाँ बोलो बोलो. मैम मैंने सुना है एक पैरासाइट होता है जो मैम पेड़ पे ना लगा रहता है, और मैम वो कुछ Cuscuta. हॉस्टोरिया Yes, ma'am, Cuscuta. अच्छा, हॉस्टोरिया से, हाँ तो हॉस्टोरियम तो कस्कटा में भी होता है, इसी तरह से लीच में भी हॉस्टोरिया होता है. दी यू नो organ which is you can say used for sucking the blood Yes, out ma'am. of the Yes, host ma'am. is known as hostorium. यस मैम, इट हैज राइबोसोम्स. Yes, it does have ribosomes. आगे चले, let's move on to the sporozoans now. तो ये जो स्पोरोजोन्स हैं इनके अंदर एक स्पोर लाइक स्टेज होती है, जैसे फंजाई में देखा था ना, स्पोर्स बनते हैं which are moved with the help of the air currents. जब विंड चलती है उसके साथ में ही वो उड़ के चले जाते हैं. सो the mode of movement or motility in such organisms is by the help of wind. Similarly, sporozoans में भी यही होता है. They are totally dependent on the wind to carry them around. ठीक है, spores की फॉर्म में. Then also, you know, these sporozoans are normally pathogenic. ठीक है, आपको जो स्पोरोजोन्स मिलेंगे उनमें से बहुत सारे, इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर पैथोजेनिक. तो ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट के बीच में ही ट्रैवल करते रहते हैं. तो मैम इन दोनों में से फ्लैजिलेटेड वन और स्पोरोजोन्स जनरली पैथोजेंस होते हैं. Ma'am, can you explain sporozoans again? हाँ, 1 second, I'll tell you. So Plasmodium is a sporozoan which causes malaria. Now let me explain it with the help of this example. देखो जो Plasmodium होता है, ideally it is of this shape. इस शेप का होता है Plasmodium. What happens is कि ये Plasmodium mosquitoes की salivary glands में होता है. Right, these are present in the nature. Mosquitoes की salivary gland में ये आ जाते हैं. जैसे हमें कोल्ड हो जाता है ना, इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी में वायरस चला गया, इसीलिए हमें कोल्ड हुआ. सिमिलरली ये प्लाज्मोडियम भी मॉस्किटोज की बॉडी में जा सकते हैं. उनकी बॉडी में जाके ये उनकी सलाइवरी ग्लैंड्स में रुक जाते हैं. नाउ सी व्हाट हैपेंस इज, अगर कोई फीमेल मॉस्किटो आई और उसने आपके हैंड पे बाइट किया, नाउ सपोज दिस इज योर हैंड, मॉस्किटो ने बाइट किया, राइट,
तो उसकी सलाइवरी ग्लैंड्स में से ये प्लाज्मोडियम आपकी स्किन में चला गया, राइट। अब आपकी बॉडी में जब ये गया तो बॉडी में जाके ना स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग, ओके, एंड व्हेन इट स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग व्हाट हैपेंस इज दैट देयर इज अ स्टेज, जैसे ये प्लाज्मोडियम था, इट हैज स्टार्टेड मल्टीप्लाइंग एंड रिप्रोड्यूसिंग, सो देयर कम्स अ स्टेज वेयर स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, and this spore like stage is helping the plasmodium to be, you know, circulated in the whole body and spread to other parts also. तो हमारी बॉडी के अंदर ये प्लाज्मोडियम जो है बार बार अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहते हैं, लिवर के अंदर और हमारे ब्लड सेल्स के अंदर, ठीक है। द प्लाज्मोडियम स्पोर्स डिवाइड बाय multiply again and again in the liver and the blood cells. इसीलिए आप देखते हो अगर किसी को मलेरिया हो तो उन्हें बार बार फीवर चढ़ता है, होता है ना, और ऐसा होता है कि 1-2 दिन के लिए फीवर चढ़ता है, फिर उतर जाता है, फिर 2-3 बार फिर फीवर हो जाता है, ठीक है। अगर आपने किसी का सुना हो मलेरिया में तो यही होता है। सो दैट इज बिकॉज 1-2 दिन में ये मल्टीप्लाई होते हैं और फिर आरबीसी फट जाता है, जिस ब्लड सेल के अंदर ये मल्टीप्लाई हो रहे थे वो फट जाता है, एंड व्हेन इट बर्स्ट्स ओपन उसके साथ साथ स्पोर्स के साथ साथ टॉक्सिन्स आल्सो कम आउट, ठीक है। देयर आर सम टॉक्सिन्स जो आरबीसीज के अंदर से बाहर आ जाते हैं व्हिच कॉजेज द फीवर, ओके। फिर क्या होता है कि बाय चांस अगर एक और मॉस्किटो आया और उसने आपका ब्लड सक कर लिया, तो आपके ब्लड के अंदर ये स्पोर्स घूम रहे थे ना, राइट, तो ये स्पोर्स अब मॉस्किटो के अंदर चले जाएंगे और फिर से जाके मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में रुक जाएंगे, फिर ये मॉस्किटो जाएगा किसी और को बाइट करेगा तो उसको भी मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। ये चीज सबको समझ में आई। तो दिस इज हाउ सी द स्पोर लाइक स्टेज इज हेल्पिंग। हाँ बोलो पावनी, 1 सेकेंड। So this is how the spore-like stage of the plasmodium is helping it to multiply over and over again and spread to various people, right? हाँ बोलो पावनी, now tell me. एक बार आप हम जैसे कि मैम आपने बोला ना जिस सेल में वो मल्टीप्लाई होने लगते हैं वो बर्स्ट हो जाता है, तो मैम तो क्या होता है फिर, हम उससे रिपीट कर सकते हैं? जब वो बर्स्ट होता है तो you know it releases all the plasmodium spores, right, and along with that there is a toxin that is produced. जब ये मल्टीप्लाई होते हैं ना स्पोर्स, तो ये साथ साथ एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं which is known as hemozoin, ठीक है। ये एक टॉक्सिन होता है, टॉक्सिन का मतलब तो सब समझते हैं ना, हार्मफुल सब्सटेंस, राइट। तो जब जब आरबीसी बर्स्ट होगा और उसमें से हीमोजोइन रिलीज होगा, हीमोजोइन विल कॉज द फीवर एंड द चिल्स। मलेरिया में बहुत हाई फीवर हो जाता है और बहुत ज्यादा ठंड लगती है, ओके, एक्सट्रीम कोल्ड, सो दैट इज व्हाट कॉजेज द एक्सट्रीम चिल एंड द फीवर, द हीमोजोइन, राइट। फिर जब ब्लड के अंदर हीमोजोइन खत्म हो जाएगा तो धीरे धीरे आपका फीवर भी डाउन आ जाएगा, लेकिन तब तक क्या होगा, नए आरबीसीज में और ज्यादा प्लाज्मोडियम बना और वो भी बर्स्ट हो गए, तो फिर से हीमोजोइन स्प्रेड हो गया, फिर से फीवर चढ़ गया। इसीलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, दे गिव यू मेडिसिन्स टू किल द प्लाज्मोडियम इन योर बॉडी, राइट। और यू नो ये जो मॉस्किटोज हैं, हम इनसे क्यों इतना बचते हैं मलेरिया के लिए, क्योंकि यही वेक्टर्स हैं जो यू नो इस प्लाज्मोडियम पैथोजन को स्प्रेड कर रहे हैं। अगर मुझे मलेरिया हुआ है और मॉस्किटो ने मुझे बाइट किया तो मेरे ब्लड में से वो प्लाज्मोडियम स्पोर्स लेके चला गया ना, अब उसकी सलाइवरी ग्लैंड्स में है वो, अब वो जाके अगर किसी और को बाइट करेगा तो उसे भी हो जाएगा, राइट। Ma'am, why doesn't it cause disease to the mosquito? हाँ, right. So Kush had asked the question कि ma'am, why does it not cause malaria to the mosquito? See, देखो एक बात ये है कि हर किसी पैथोजन की अपनी एक यू नो लिमिट है किसी को इन्फेक्ट करने की। जैसे some bacteria might be present in the gut of the cattle but it is not infecting it, वो उसकी हेल्प कर रहा है उल्टा डाइजेशन में, बट वो बैक्टीरिया मुझे इन्फेक्ट कर सकता है बिकॉज माई बॉडी हैज अ डिफरेंट सिस्टम, ओके। सिमिलरली इंसेक्ट्स के साथ भी यही है। अब देखो आरबीसीज चाहिए प्लाज्मोडियम को मल्टीप्लाई करने के लिए, मेरे अंदर आरबीसीज हैं, बट जो मॉस्किटोज होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर आरबीसीज नहीं होते, ओके। मॉस्किटोज डू नॉट हैव आरबीसीज, okay, so that is why the malaria is not caused to the mosquitoes. कर्तव्य we are doing the same chapter, microorganisms ही कर रहे हैं, आगे का पार्ट है, ठीक है। हाँ बोलो पावनी।
मैम जब मैम मच्छर काटते हैं तो मैम हमें खुजली क्यों होती है मैम? मैम वो ऐसा कुछ रिलीज करते होंगे फिर। वो प्रोबॉसिस आपकी स्किन में एंटर करता है ना, तो इट एक्टिवेट्स योर रिसेप्टिकल्स और सेंसर्स इन द स्किन, so that causes an itching. It basically is a message to your brain to, you know, protect yourself, and also it you know, indicates that your skin has been pierced from a particular region, right? यस मैम। मैम फिर वो अपने आप ठीक कैसे हो जाता है मैम? वो रिलीज क्या करता है मतलब? रिलीज एज इन हमारी स्किन कैसे ठीक होती है? एक तो देखो, पहली बात, वो बहुत छोटा सा वो होता है, होल होता है, ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल होल, क्योंकि प्रोबॉसिस बहुत फाइन होता है लेंथ में और विड्थ में, तो इतनी मोटी उसकी नीडल नहीं होती जो आपकी स्किन में इतना बड़ा होल कर दे। इट्स अ वेरी फाइन होल। तो जितनी देर में वो ब्लड पी के जाएगा, उतनी देर में उस छोटी सी जगह में क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की। ओके, ओके मैम, यस। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोटोजोआ, ठीक है। आपके लेवल पे अभी यही सब है। ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका के नीचे भी लिख सकते हो, कॉजेस डाइसेंट्री। और मैम तो मलेरिया से बचने के लिए कौन सी दवाई दी जाती है? नाम क्या होता है? मलेरिया से बचने के लिए देखो, अभी तो मुझे उस ड्रग का नाम नहीं याद, मैं आपको बाद में बता सकती हूँ, ठीक है। यस। ओके, नाउ लेट्स जस्ट लिखने का है, क्या हमको लिख- करता भी, ये सारा जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये सब लिखना है। एक काम करो, बाकी सबने लिख लिया? हैज एवरीबॉडी एल्स नोटेड डाउन? यस मैम। यस मैम। प्लास्मोडियम बनाया किसी ने? यस यस मैम। तो लेट्स जस्ट डू वन थिंग, कर्तव्य, यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ठीक है, आप बाद में नोट कर लेना। एंड व्हाट? I'm telling Kartavya to take a screenshot of it because he joined late, so he has not noted it down. और फिर अगर वो नोट करेगा तो बाकी सब वेट करते रहेंगे ना। ले लिया कर्तव्य स्क्रीनशॉट? Is he there in the meeting? Is he listening? He's there. मैम हु? कर्तव्य। यस चलो, मैम। let's move on then. See, this is Euglena. It's also a flagellated one. ये amoeba है. This is the paramecium. मैम यूग्लेना क्या होता है? यूग्लेना भी एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है, ठीक है। नाउ सी, अच्छा, यूग्लेना की एक बहुत अच्छी बात है, जब इसे सनलाइट मिलती रहती है, इट इज एबल टू फोटोसिंथेसाइज। ओके, वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है जब तक उसे सनलाइट अच्छे अमाउंट में मिल रही है। बट व्हेन द सनलाइट इज एब्सेंट, इट लिव्स थ्रू सैप्रोफिटिक मोड। वो फिर सैप्रोट्रॉफिक हो जाता है, यू नो, डिकेइंग लॉग्स और एनिमल बॉडीज के ऊपर फिर जाके फीड करेगा, एंड दैट इज हाउ इट विल गेन इट्स न्यूट्रिशन। राइट, सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्किप ओवर दिस, कहीं पे कुछ डिफरेंट चीज होगी तब मैं बताऊंगी। राइट, ओके, हियर दे आर टॉकिंग अबाउट, हाँ नहीं करता हुए, जब कहीं नोट करना होगा मैं आपको बता दूंगी। See, here they have talked about the characteristics of various kingdoms which are exhibited by Protista. देखो, प्लांट का क्या शो करता है? मल्टीसेल्युलर है, यूकैरियोटिक है, फोटोसिंथेसाइज कर सकता है। सो दिस इज अ प्लांट यू नो कैरेक्टरिस्टिक। फिर मोटाइल है, मूव कर सकता है, दैट इज एन एनिमल कैरेक्टरिस्टिक। फंजाई का क्या शो कर रहा है? वो spore like stage, ठीक है, some members are showing a spore like stage, so that is a fungi characteristic. और फिर
Archaebacteria or eubacteria, say it is showing some, unicellular symptoms, some, you can also say simple body forms. ये देखो, this is plasmodium. सेल के अंदर देख रहे हो, it is multiplying. और ये यहाँ पे this dot structure that you see ना, this, ये शो कर रहा है कि आरबीसी के अंदर द प्लाज्मोडियम इज मल्टीप्लाइंग. ठीक है. And which is the vector for plasmodium, this pathogen? Anopheles mosquito. Male or female? बताओ. Which mosquito is the vector? Male mosquito or female? जनरली फीमेल ही इन्फेक्ट करती हैं. Female. हमेशा ही फीमेल होती है. ठीक है. मेल्स कभी भी ब्लड नहीं सक करते, सिर्फ फीमेल्स करती हैं क्योंकि उन्हें एग्स के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है. Right? Males will never suck the blood. So whenever you find a mosquito sucking your blood, you have to understand कि वो एक फीमेल है. Right? Males जो होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं. हम मेल वाले फिर हम कैसे, मतलब खाना कैसे खाते हैं? मतलब वो हमारा ब्लड ही तो पीते हैं सारे. देखो, प्राइमरीली जो मॉस्किटोज है ना, दे आर फाइटोफेगस. फाइटोफेगस का मतलब है कि वो प्लांट खाते हैं. सो दे जस्ट लाइक बटरफ्लाइज, दे ऑल्सो सक द प्लांट सैप फ्रॉम द लीव्स. जैसे बटरफ्लाइज फ्लावर्स में से नेक्टर पीती हैं, इसी तरह से मॉस्किटोज प्लांट सैप खाते हैं. तभी आप देखते हो पार्क्स में इतने सारे मॉस्किटो होते हैं, है ना. कभी सोचा है क्यों? क्योंकि वो वहां पे खाना खाने आए हैं. ओके. फीमेल मॉस्किटो भी प्लांट्स ही खाती है, बट इट नीड्स ब्लड फॉर द एग्स, for the development of its eggs. Okay. Ma'am, 1 minute. Anopheles and noting. What were you noting down, Pavni? Ma'am, Anopheles one. अच्छा, लिख लो. So you people can write down vector for malaria. You understand? हाँ, बोलो कर्तव्य. Note down. You have to note down this. Okay. Okay, ma'am. Done. And what is the difference between vector and pathogen? Ma'am, vector and Pathogen. क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? आदि Vector carries the मैम pathogen. ये जो वेक्टर जो होता है मैम वो Vector is the disease. चलो अच्छा, पहले नियति वो स्पीकिंग, पहले नियति को बोलने देते हैं. हाँ बोलो नियति. Yes, ma'am. Ma'am, I was saying that vector is carrier and pathogen is the disease that is causing. Very good. Yes, अनिकेत. नहीं मैम, मुझे भी यही कहना. यही कहना था, फिर भी बता दो. चलो, नो प्रॉब्लम. Ma'am, pathogens can be termed as the disease which causes. नहीं, pathogens. हाँ. Yes, ma'am. Ma'am, pathogens, we can say that it is those microbes that causes disease, and vectors are the carriers. Very nice. हाँ जी पावनी. मैम डेफिनेशन तो हो गई, तो मैम एग्जांपल से ले सकते हैं. जैसे मैम पैथोजन है मैम प्लाज्मोडियम, और मैम वेक्टर है एनोफिलीज मॉस्किटो. So pathogen is the organism which causes the disease, whereas vector is just the organism which is carrying the pathogen from one host to another or from one place to another. जैसे जब भी आपको कभी टाइफॉइड होता है, ठीक है, टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम, राइट. सो वो टाइफॉइड का बैक्टीरिया आपकी बॉडी में कहाँ से आया? टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय ईटिंग कंटामिनेटेड फूड. जिस फूड के अंदर वो बैक्टीरिया था, साल्मोनेला टाइफी, उस फूड को जब मैंने खा लिया तो मुझे टाइफॉइड हो जाएगा. सो व्हाट कॉज्ड माय फूड टू गेट कंटामिनेटेड बाय दैट बैक्टीरिया? हाँ जी कर्तव्य, टेल मी.
मैं आपके पास इसको डिफरेंशिएट कर दे. What were you saying, Kartavya? Ma'am, you have just differentiate between what? Ma'am, differentiate not it and नहीं, हम बस डिस्कस कर रहे हैं. We are not writing anything. ठीक है. क्या बता रही थी मैं? हाँ, टाइफॉइड के बारे में. तो टाइफॉइड का जो पैथोजन है साल्मोनेला टाइफी, वो आपके फूड में कहाँ से आया? इट कम्स ऑनटू योर फूड थ्रू हाउस फ्लाइज. ठीक है, जो मक्खियां होती हैं वो आपके फूड के ऊपर इस टाइफॉइड वेक्टर पैथोजन को लीव कर देती हैं. सो व्हाट हैपेंस इज, जैसे कहीं गार्बेज पड़ा है या फिर इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड बाय टाइफॉइड, so whatever fecal matter they eliminate from their body, जब वो defecate करते हैं, so the fecal matter contains this bacteria. ठीक है, हाउस फ्लाइज इस fecal matter पे बैठेंगी, वो पिकअप कर लेंगी वहां से बैक्टीरिया को और fecal matter को, and then they will come and sit on the food which was uncovered, और वो वहां पे उस बैक्टीरिया को लीव कर देते हैं. ठीक है, so here what is the pathogen? It's the Salmonella typhi bacterium, and what is the vector? It is the housefly. Understood? चलो लिख लेते हैं so that you guys do not get confused. ये लिखना है सबको. कर्तव्य ये लिख लेना. मैम वेक्टर के दो मीनिंग है मैम, एक वाला और एक में मैंने सुना वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें नहीं, हाँ, वो जो वेक्टर होता है that is in physics. Yes, ma'am. It's related to motion in which the direction and speed both are mentioned. So any quantity which has magnitude and direction, that is a vector quantity. ठीक है, और जिसके अंदर सिर्फ magnitude होता है वो स्केलर होती है.
मैम मैम गंदे पानी में ऐसा क्या होता है जो मैम बहुत सारे मच्छर उस समय पैदा हो जाते हैं वहाँ पे? गंदे पानी में नहीं, हमेशा आप देखोगे कि जो मॉस्किटोज होते हैं वो क्लीन वाटर में वो होते हैं, ठीक है? मैम किसमें? वाटर, stagnant साफ water. पानी में। Clean water. आप तभी देखते हो ना मॉनसून के बाद, देखो कितने सारे वो एमसीडी वाले घूमते हैं घरों में, आके चेक करते हैं कि कहीं पे वाटर तो नहीं पड़ा हुआ, बिकॉज अगर स्टिल वाटर होगा कहीं पे फ्रेश वाटर तो उसके अंदर मॉस्किटोज बहुत जल्दी आ जाएंगे। व्हाई? बिकॉज देखो व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज लेइंग एग्स, तो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वो ऐसी जगह पे तो ऑब्वियसली नहीं एग्स ले करेगा ना जहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि देखो मॉस्किटोज आर लाइक दोज ऑर्गेनिजम्स जो अपने एग्स के पास में हमेशा रहते नहीं है। ओके, वो ये नहीं करेंगे कि एग्स को वहां पे लेके और उनके आसपास ही रहे, दे जस्ट ले देयर एग्स एंड लीव। वो एग्स अपने आप ही हैच होते हैं, उसमें से अपने आप ही मॉस्किटोज निकलते हैं, सो दे ले देयर एग्स एट अ साइट व्हिच इज अनडिस्टर्ब्ड। इसीलिए स्टिल वाटर जहां पे भी होता है फ्रेश वाटर, उसमें वो एग्स ले करेंगे। ओके, ये नोट कर लिया सबने? यस मैम। Yes. Yes, ma'am. Okay, great. Now see, this is the Aedes mosquito. Aedes mosquito is the vector of dengue and chikungunya. ठीक है, जिस तरह से अनोफिलीज के बाइट करने से मलेरिया होता है, एडीज के बाइट करने से डेंगू और चिकनगुनिया होता है। Okay, so here they have shown you amoebic dysentery क्या होती है, what causes amoebic dysentery, Entamoeba histolytica। ठीक है, तो इसके अंदर what happens is dysentery में you know the person has diarrhea like symptoms, ठीक है, लूज मोशंस होते हैं, and also the you know fecal matter or the loose motion that is there, it is also covered in pus or mucus। ठीक है, there might be mucus discharge। Ma'am, what happens in amoebic dysentery? अमीबिक डाइसेंट्री हैज सिम्टम्स लाइक डायरिया। ठीक है, आपको लूज मोशंस हो सकते हैं, म्यूकस कवर्ड डिस्चार्ज होता है along with the fecal matter, and also you know sometimes the fecal matter might be covered in blood। अगर बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो जाए तो ब्लीडिंग भी हो सकती है आपको fecal matter के साथ साथ, राइट? Ma'am, मैम डायरिया कौन कॉज करता है? Diarrhea is basically like a food poisoning. When your digestive system is not you know working properly, it is not able to digest the food properly, it will eliminate it out with a lot of water। ठीक है, तो हम उस कंडीशन को डायरिया बोलते हैं। ओके, सो अगेन जो अमीबिक डाइसेंट्री है that is also caused by contaminated food and water। So what do you think might be the vector for Entamoeba histolytica or amoebic dysentery? Contaminated food and water. हाँ, कर्तव्य, stop messaging please, this is very disturbing। बताओ एंटामीबा हिस्टोलिटिका का वेक्टर कौन होगा, बिकॉज इट इज बीइंग you know transmitted through contaminated food and water। तो क्या हो सकता है वेक्टर, बताओ? बोलो बोलो पावनी। मैम हाउस फ्लाई मैम, वो आती हैं उन पे बैठती हैं कांटेक्ट। Yes, बिल्कुल ma'am. बिल्कुल, that's right। so housefly is the vector for Entamoeba histolytica। all right, so see, जैसे आप लोग अभी पूछे थे मैम डायरिया और डाइसेंट्री कैसे डिफरेंट है। सो मेजर डिफरेंस इज कि डाइसेंट्री जो है वो एक कंडीशन है, बट डायरिया इज मोर ऑफ अ सिम्टम। ठीक है, मैंने अभी क्या बताया था, जब मैंने डाइसेंट्री के बारे में बोला तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई सेड वाज कि डाइसेंट्री के सारे सिम्टम्स डायरिया जैसे ही हैं, रादर डायरिया ही है एक तरह से। ठीक है, सो यू कैन राइट डाउन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइसेंट्री एंड डायरिया। मैम डायरिया कॉलेरा के वक्त होता है।
तो वही तो वो बता रहे हैं कि डायरिया एक कंडीशन है। आपको किसी भी इंफेक्शन या डिजीज के टाइम पे डायरिया हो सकता है। तो जब किसी इंसान को लूज मोशंस हो, स्टमक एक हो, बहुत सारा वाटर बॉडी से एलिमिनेट हो रहा हो या जा रहा हो, तो हम उन पूरे सिम्टम्स को मिला के डायरिया बोल देते हैं। ठीक है, तो डायरिया इज बेसिकली ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ऑलराइट, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि डायरिया एक डिजीज है, मैं ये कहूंगी कि डायरिया इज अ कंडीशन। बहुत सारे सिम्टम्स जब ऐसे हो तो हम उन सबको मिला के डायरिया बोल देते हैं, राइट? Ma'am, this is the answer. This is the answer. Ma'am, noted. Okay, great. So after this, the major thing that we are left with is the usefulness of protozoans. ठीक है, क्योंकि हमने हार्म्स तो डिस्कस कर लिए कि these are pathogenic. अब usefulness डिस्कस कर लेते हैं. Okay, first thing is these are major decomposers. क्योंकि saprotrophic mode देखा था ना हमने, तो major class consist of decomposers. So they are helping in the replenishment of soil resources and soil minerals. Then another point would be that they are an important part of the food chain. मैम कैसे? एक मिनट, अभी बताती हूँ। खुद सोचो कि अगर ये डिकम्पोजर्स ना होते और सॉइल के अंदर ये प्लांट और एनिमल से मिनरल्स वापस नहीं डालते, तो क्या और प्लांट्स उसमें ओरिजिनेट हो पाते? नहीं ना। सो दैट इज व्हाई फूड चेन के अंदर इनका होना बहुत जरूरी है। इफ दे डू नॉट डिकम्पोज, क्योंकि देखो दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द फूड चेन, ये डिकम्पोज इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज इन्हें उससे फूड मिल रहा है, राइट? सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि ये फूड चेन में इंक्लूडेड है। डोंट थिंक ऑफ इट कि वो प्लांट से डियर और लायन वाली फूड चेन की बात हो रही है। थिंक ऑफ इट एज अ बिगर पिक्चर। ठीक है, अब बड़े हो गए हो, थोड़ा और खुल के सोचा करो कि क्या हो सकता है, कहाँ से लिंक्स हो सकते हैं, राइट? सो हियर दे आर टॉकिंग अबाउट द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल न्यूट्रिएंट्स। ऑलराइट, अच्छा, Shaurya is asking, ma'am, are planktons protozoa? See, planktons are, you can say, protozoans. ठीक है, planktons जो होते हैं, they are very very small organisms जो oceans के अंदर freely floating होते हैं. Okay, there are two types of planktons. Phytoplanktons होते हैं and zooplanktons होते हैं. So phytoplanktons जो होते हैं, they are plants, and zooplanktons are very small other organisms. और ये दोनों ही जो है, इन्हें फिशेस खाती हैं। जो छोटी फिशेस होती हैं उनका खाना क्या होता है? प्लैंक्टन्स होते हैं। ठीक है, हाँ शाश्वत बोलो। मीन्स आज का जो सॉक्रेटिव था उसमें मैंने प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा लिखा था, तो उसमें मेरे मार्क्स कट गए थे। ऐसा होना नहीं चाहिए। हो सकता है कि ना उसमें आंसर जो है, बिकॉज सी सॉक्रेटिव इज लाइक गूगल फॉर्म्स, उसके अंदर जो आंसर फीड करेंगे ना हम, वही आंसर वो करेक्ट बताएगा। ठीक है, सो हो सकता है कि उस क्वेश्चन का आंसर प्रोटोजोआ वो किया हुआ होगा, फीड किया हुआ होगा, तो वो प्रोटिस्टा को गलत शो करेगा। ठीक है, अगर मैं उसमें प्रोटिस्टा भी फीड करूं तो देन इट विल शो प्रोटिस्टा एज करेक्ट, बट एनीवेज डोंट वरी, वो आंसर सही है। Yes, ma'am, same happened with me. हाँ, यस, आपके हैंडआउट में भी तो प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा लिखा हुआ है ना, तो Yes, सही है। yes, मतलब वो इट इज ऑल बिकॉज उसमें वो आंसर फीड नहीं किया गया, कंप्यूटर सिस्टम है ना, उसकी गलती नहीं। ठीक है, सो दीज आर द यूजेस ऑफ प्रोटोजोआ, इससे ज्यादा है नहीं, राइट? फिर नेक्स्ट क्लास से हम अब वायरसेस के बारे में शुरू करेंगे। Protozoa is over. यस यस, प्रोटोजोआ इज ओवर, इतना ही था। ठीक है,
Chalo. So let's leave the session then. Bye, ma'am. Thank you. Bye, ma'am. Thank you, Miss. Bye, Miss. Okay, bye Thank you, bye. ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Good night, ma'am. Good night.